Lesson 1. The Book of Nature. Jawaharlal Nehru. Let's begin. Pandit Jawaharlal Nehru was a great freedom fighter and the first Prime Minister of independent India. He was also a very good writer. The Discovery of India, Glimpses of World History, and Autobiography are some of his notable works. In the late 1920s, he wrote a series of letters to his young daughter Indira, sharing his thoughts, ideas, and knowledge with her. These letters were later compiled into a book titled Letters from a Father to His Daughter. The present text is an excerpt from that book. Unit 1. When you and I are together, you often ask me questions about many things, and I try to answer them. Now that you are in Mussoorie and I am in Allahabad, we cannot have these conversations. Therefore, I am going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth and the many countries, both large and small, into which it is divided. You have read a little about English history and Indian history, but England is just a small island, and India, though a large country, is only a small part of the earth's surface. If we want to know something about the story of our world, we must consider all the countries and all the people who have lived in it, not just a small country where we were born. I am afraid I can only tell you a little in these letters of mine, but I hope that little will interest you and make you think of the world as a whole, and of other people in it as our brothers and sisters. When you grow up, you will read about the story of the earth and its people in thick books, and you will find it more interesting than any other story or novel you may have read. You know, of course, that our earth is very, very old, millions and millions of years old. And for a very long time, there were no men or women living on it. Before humans came, there were only animals. And before the animals, there was a time when no life existed on earth. It is difficult to imagine this world of ours, which is so full of all kinds of animals and people today, without them. But scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. And if we read their books and study the rocks and fossils, the remains of ancient animals, we can see for ourselves that this must have been the case. यहाँ पाठ का हिंदी में अनुवाद दिया गया है। पाठ 1। प्रकृति की किताब, जवाहरलाल नेहरू। चलो शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी उनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं। 1920 के दशक के अंत में उन्होंने अपनी युवा बेटी इंदिरा को अपने विचारों, सोच और ज्ञान को साझा करने के लिए पत्रों की एक श्रृंखला लिखी। इन पत्रों को बाद में लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर नामक पुस्तक में संकलित किया गया। प्रस्तुत पाठ पुस्तक का एक अंश है। इकाई 1। जब तुम और मैं साथ होते हैं तो तुम अक्सर मुझसे कई चीजों के बारे में सवाल पूछती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूं तो हम ये बातें नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समय समय पर तुम्हें अपनी पृथ्वी और कई देशों, बड़े और छोटे, जिनमें यह विभाजित है, की कहानी के संक्षिप्त विवरण लिखूंगा। तुमने अंग्रेजी इतिहास और भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ा पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा द्वीप है और भारत, हालांकि एक बड़ा देश है, पृथ्वी की सतह का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हम अपनी इस दुनिया की कहानी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें उन सभी देशों और सभी लोगों के बारे में सोचना होगा जो इसमें बसे हैं, और न केवल उस छोटे से देश के बारे में जहां हमारा जन्म हुआ हो। मुझे डर है कि मैं तुम्हें अपने इन पत्रों में बहुत कम ही बता सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो थोड़ा सा तुम्हें रुचिकर लगेगा और तुम्हें दुनिया को एक संपूर्ण रूप में और उसमें रहने वाले अन्य लोगों को अपने भाइयों और बहनों के रूप में सोचने पर मजबूर करेगा। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम पृथ्वी और उसके लोगों की कहानी के बारे में मोटी किताबों में पढ़ोगी और तुम्हें ये किसी अन्य कहानी या उपन्यास से अधिक दिलचस्प लगेगी जिसे तुमने पढ़ा होगा। तुम्हें पता है कि हमारी पृथ्वी बहुत बहुत पुरानी है, लाखों और लाखों साल पुरानी, और लंबे समय तक इसमें कोई पुरुष या महिला नहीं रहते थे। पुरुषों के आने से पहले केवल जानवर थे, और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था। हमारी इस दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है जो आज सभी प्रकार के जानवरों और पुरुषों से भरी हुई है, उनके बिना। लेकिन वैज्ञानिक और जिन्होंने इन मामलों के बारे में बहुत अध्ययन और विचार किया है, वे हमें बताते हैं कि एक समय था जब पृथ्वी किसी भी जीवित प्राणी के रहने के लिए बहुत गर्म थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ते हैं और चट्टानों और जीवाश्मों, पुराने जानवरों के अवशेष का अध्ययन करते हैं तो हम खुद देख सकते हैं कि ये ऐसा ही रहा होगा। यूनिट 2।
यूनिट 2 इकाई 2। यू रीड हिस्ट्री इन बुक्स। तुम इतिहास किताबों में पढ़ते हो। बट इन ओल्ड टाइम्स व्हेन मेन डिड नॉट एग्जिस्ट श्योरली नो बुक्स कुड हैव बीन रिटन। लेकिन पुराने समय में जब मनुष्य नहीं थे तो निश्चित रूप से कोई किताब नहीं लिखी जा सकती थी। हाउ देन कैन वी फाइंड आउट व्हाट हैपेंड देन? माइनस तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि तब क्या हुआ था? वी कैन नॉट मियरली सिट डाउन एंड इमेजिन एवरीथिंग। हम केवल बैठकर सब कुछ कल्पना नहीं कर सकते। दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, for we could imagine anything we wanted to and would thus make up the most beautiful fairy tales. माइनस ये बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि हम जो चाहें वो कल्पना कर सकते हैं और इस प्रकार सबसे सुंदर परियों की कहानियां बना सकते हैं। But this need not be true as it would not be based on any facts that we had seen. माइनस लेकिन ये सच नहीं होना चाहिए क्योंकि ये उन तथ्यों पर आधारित नहीं होगा जो हमने देखे हैं। But although we have no books written in those far off days, fortunately we have some things which tell us a great deal as well, almost as a book would. लेकिन हालांकि हमारे पास उन पुराने दिनों में लिखी कोई किताबें नहीं हैं, सौभाग्य से हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमें लगभग एक किताब की तरह बहुत कुछ बताती हैं। वी हैव रॉक्स एंड माउंटेन्स एंड सीज एंड स्टार्स एंड रिवर्स एंड डेजर्ट्स एंड फॉसिल्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स। हमारे पास चट्टानें और पहाड़ और समुद्र और तारे और नदियां और रेगिस्तान और पुराने जानवरों के जीवाश्म हैं। दीज एंड अदर लाइक थिंग्स आर आवर बुक्स फॉर द अर्थ्स अर्ली स्टोरी। दी लाइनस ये और अन्य चीजें पृथ्वी की शुरुआती कहानी के लिए हमारी किताबें हैं। And the real way to understand this story is not merely to read about it in other people's books, but to go to the great book of nature itself. माइनस और इस कहानी को समझने का असली तरीका केवल दूसरों की किताबों में इसके बारे में पढ़ना नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकृति की महान पुस्तक में जाना है। You will, I hope, soon begin to learn how to read this story from the rocks and mountains. मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही चट्टानों और पहाड़ों से इस कहानी को पढ़ना सीख जाएंगे। Imagine how fascinating it is. कल्पना कीजिए कि यह कितना आकर्षक है। Every little stone that you see lying in the road or on the mountainside may be a little page in nature's book and may be able to tell you something if you only knew how to read it. सड़क या पहाड़ की तरफ पड़ी हर छोटी चट्टान प्रकृति की किताब का एक छोटा पन्ना हो सकती है और अगर आप इसे पढ़ना जानते हैं तो आपको कुछ बता सकती है। To be able to read any language, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, you have to learn its alphabet. किसी भी भाषा, हिंदी या उर्दू या अंग्रेजी को पढ़ने में सक्षम होने के लिए आपको उसकी वर्णमाला सीखनी होगी। So also you must learn the alphabet of nature before you can read her story in her books of stone and rock. मनीष तो आपको पत्थर और चट्टान की किताबों में उसकी कहानी पढ़ने से पहले प्रकृति की वर्णमाला सीखनी होगी। Even now perhaps you know a little how to read this. शायद अब भी आप थोड़ा जानते हैं कि इसे कैसे पढ़ा जाए। If you see a little round shiny pebble, does it not tell you something? यदि आप एक छोटा गोल चमकदार कंकड़ देखते हैं तो क्या ये आपको कुछ नहीं बताता है? How did it get round and smooth and shiny without any corners or rough edges? यह बिना किसी कोने या खुरदुरे किनारों के गोल और चिकना और चमकदार कैसे हो गया? If you break a big rock into small bits, each bit is rough and has corners and rough edges. मियनस यदि आप एक बड़ी चट्टान को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा खुरदरा होता है और उसमें कोने और खुरदुरे किनारे होते हैं। It is not at all like a round smooth pebble. माइनस यह बिल्कुल भी गोल चिकने कंकड़ जैसा नहीं है। How then did the pebble become so round and smooth and shiny? तो कंकड़ इतना गोल और चिकना और चमकदार कैसे हो गया? It will tell you its story if you have good eyes to see and ears to hear it. माइनस अगर आपके पास देखने के लिए अच्छी आंखें और सुनने के लिए कान हैं, तो ये आपको अपनी कहानी बताएगा। It tells you that once upon a time, it may be long ago, it was a bit of a rock, just like the bit you may break from a big rock or stone with plenty of edges and corners. मियाँ आपको बताता है कि एक समय की बात है, शायद बहुत पहले, ये एक चट्टान का टुकड़ा था, बिल्कुल उस टुकड़े की तरह जिसे आप बहुत सारे किनारों और कोनों वाली एक बड़ी चट्टान या पत्थर से तोड़ सकते हैं। Probably it rested on some mountain side. शायद ये किसी पहाड़ की तरफ रखा हुआ था। Then came the rain and washed it down to the little valley where it found a mountain stream which pushed it on and on till it reached a little river. फिर बारिश हुई और इसे छोटी घाटी में धो दिया, जहां इसे एक पहाड़ी धारा मिली, जिसने इसे तब तक धकेला जब तक ये एक छोटी नदी तक नहीं पहुंच गया। And the little river took it to the big river. माइनस और छोटी नदी इसे बड़ी नदी में ले गई। And all the while it rolled at the bottom of the river, and its edges were worn away, and its rough surface made smooth and shiny. माइनस और इस दौरान ये नदी के तल पर लुढ़कता रहा और इसके किनारे घिस गए और इसकी खुरदरी सतह चिकनी और चमकदार हो गई। So it became the pebble that you see. इसलिए ये वो कंकड़ बन गया जिसे आप देखते हैं। Somehow the river left it behind and you found it. किसी तरह नदी ने इसे पीछे छोड़ दिया और तुमने इसे पा लिया। If the river had carried it on, it would have become smaller and smaller, till at last it became a grain of sand, and joined its brothers at the seaside to make a beautiful beach where little children can play,
and make castles out of the sand. माइनस अगर नदी इसे आगे ले जाती तो ये छोटा और छोटा होता जाता, जब तक कि अंत में ये रेत का एक दाना नहीं बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से मिलकर एक सुंदर समुद्र तट बनाता जहां छोटे बच्चे रेत से खेल सकते हैं और महल बना सकते हैं. If a little pebble can tell you so much, how much more could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us? यदि एक छोटा कंकड़ आपको इतना कुछ बता सकता है, तो हम अपने चारों ओर दिखने वाली सभी चट्टानों और पहाड़ों और कई अन्य चीजों से कितना कुछ सीख सकते हैं.